Especially whenever I ask the students, which topic you feel it very difficult? And the most common answer that I get is, sir, word problems we find it very difficult. So today I'll discuss about how we can make word problems easy using flowcharts. Now you will say, sir, flowcharts, we have heard flowcharts in computer, but how can we use flowcharts for word problem? That is what is the topic of my discussion today. So let us see how we can discuss how we can use flowcharts for solving the word problems. See here, suppose you are coming across the problems called fractions. Usually the type of question, nature of question is a fraction becomes this much. When we add this much to the numerator and this much to the denominator, it becomes like this. When we reduce this much from the numerator and reduce this much from the denominator, the fraction becomes this much. Find the numerator and denominator. This is the general pattern of question that is asked in the examination. Now when this type of question is asked, how our flowchart will help us, let us see. See, we have to begin like this. When a fraction problem is there, the first step is take the numerator as x and denominator as y. You should take the numerator as x and denominator as y. If you take numerator as x and denominator as y, the fraction will become x by y. This is the first step that is very important. Whenever any fraction problem is given to you, you should take numerator as x and denominator as y, and fraction should be x and y. Then read the question correctly. In the question itself, the first condition will be, if you add something to the fraction numerator or something to the denominator, the fraction will become something. For example, you can add it also, or sometimes it may be minus also. Addition or subtraction will give this much. So suppose if it is x plus, say it is 5, and say it is y plus 6. So here you will get some answer, say a, and say some b. So what you will do here is, after writing this step, this is called as condition number 1. We start like this, the fraction, numerator is x, denominator is y. When we add or subtract something to the numerator and add or subtract to the denominator, we will get something, say a and b. So this is what we call it as condition number 1. After that, what we do is, we go for cross multiplication, and after cross multiplication, we will get an equation in two variable, that is linear equations in two variable, and we usually call it as first equation. Then again, after the comma, there will be second condition. The second condition will normally tell this much we are adding and this much we are subtracting, and we are going to get fraction this much. Suppose here, say here 6 is there, so here let me say 7, and let me say here 8, or even it can be subtracted also. It is not necessary that always it should be added. So when you add something and or subtract something, you should get something here, say C and D. Now again what you should do is, you have to go for cross multiplication, and when you go for cross multiplication, you will get another linear equations in two variables. And after that, if you solve these two linear equations in two variables, you will get the value of x and y. So this is how you have to start. It is a flow chart. It should be present in your mind. Fraction अगर दिया है, तो fraction का numerator x होगा, denominator y होगा, fraction होगा x by y. ये हो गया हमारा पहला स्टेप. बाद में न्यूमरेटर में इतना जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में इतना जोड़ दिया, फ्रैक्शन इतना आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा. फिर सेकंड कंडीशन में क्या होगा, न्यूमरेटर में इतना माइनस किया है, डिनोमिनेटर में इतना माइनस किया, फ्रैक्शन इतना आया है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको सेकंड इक्वेशन आ जाएगा. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको एक्स एंड वाई का सोल्यूशन मिलेगा. और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, आपके पास दूसरा क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो इस बार सिलेबस में नहीं है. तो ये है फ्लो चार्ट का उपयोग. तो इस स्टेप से अगर आप चले जाओगे, तो अगर इसको खाली रख के आप देखिए कि सारे फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स आप इस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास आप कीजिए. नेक्स्ट आता है एज प्रॉब्लम्स. एज प्रॉब्लम में यूजुअली फादर एंड सन, मदर एंड डॉटर, ब्रदर वगैरह, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स का एज वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है. यूजुअली एज प्रॉब्लम कैसे होता है, 5 years ago his age was this 5 times his age, या father's age was 5 times his son's age. 5 years from now father's age will be 3 times son's age. ये नॉर्मल सेंटेंसेस एज प्रॉब्लम में होते हैं. या फिर 5 years ago mother's age was 3 times her daughter's age.
See, 6 years later, her age will be 2 times her daughter's age. What is the present age? तो this is the pattern of question that is usually asked in the exam. तो वैसा जब क्वेश्चन आता है तो आपका फ्लो चार्ट इस प्रकार से होना चाहिए। करंट एज आप x पकड़ोगे और करंट एज x एंड y पकड़ोगे। मान लीजिए फादर और सन का दिया है तो फादर का x ले लीजिए, सन का y ले लीजिए, या उल्टा भी आप ले सकते हो। बाद में क्या होता है, आफ्टर डैश ईयर्स, मान लीजिए आफ्टर 5 ईयर्स अगर उन्होंने कहा, 5 साल बाद अगर उन्होंने कहा, तो पिताजी का उम्र के अंदर आप x+5 जोड़ोगे और बेटे का उम्र के अंदर आप क्या करोगे, x+5 जोड़ दोगे, y+5 जोड़ दोगे। ये एक कॉमन मेथड है। 5 साल बाद, 6 साल बाद, जो भी हो, तो 5 साल बाद पिताजी का उम्र मान लीजिए बेटे का 7 गुना है। डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज मैं मन से दे रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। 5 साल बाद 7 गुना है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, यानी x+5 इज इक्वल टू 7 इंटू y+7 जो भी हो आप करोगे, तो आपके पास पहला इक्वेशन मिल जाता है। पहला इक्वेशन मिल जाता है। फिर ये हो जाता है फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यूजुअली कॉमा डालने के बाद सेकंड सेंटेंस उसके अंदर होता है 5 years बैक या 10 years फ्रॉम नाउ। तो सेकंड कंडीशन में आप क्या करते हो, डैश ईयर्स बिफोर, मान लीजिए 5 years बिफोर उन्होंने कहा, तो 5 years बिफोर अगर उन्होंने कहा है तो फादर का एज जो x था वो x-5 हो जाएगा, सन का एज जो y था वो y-5 हो जाएगा। फिर बाद में वो कहते हैं कि 3 गुना है, 3 गुना अगर है इसका मतलब क्या है, x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y-5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक सेकंड इक्वेशन मिल जाता है, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगा। तो सो सिंपल चिल्ड्रन। देखिए आप इस फ्लो चार्ट में आप एज प्रॉब्लम के सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आप डाल के देख लीजिए, आपको सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्लो चार्ट कैसे याद में रखना है एज प्रॉब्लम का, करंट एज ऑफ फादर या सन जो भी दिया हो x होगा, सन का होगा y, फिर 5 साल बाद अगर वो कहते हैं तो x+5 और y+5 होगा, तो x+5 इज इक्वल टू 2 इंटू y+5 जो भी हो। 5 साल पहले अगर दिया हो तो x-5 y-5 होगा। 7 टाइम्स अगर दिया है तो फादर एज इज इक्वल टू 7 इंटू सन एज। और फाइनली इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, इससे आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करते हो तो तुमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस ढांचे के अंदर आप जो भी प्रॉब्लम बिठाओ, सारे इस ढांचे में से आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इस ढांचे के अंदर आप सारे फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम को बिठाइए, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक ढांचा मैं आपको दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ स्ट्रक्चर, यू पुट द वैल्यूज देयर, यू विल गेट द आंसर्स एज फॉलो, यू विल गेट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो एरिया का अगर प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का लेंथ इतना बढ़ा दिया, ब्रेड्थ, द लेंथ इज इंक्रीज बाय सो मच, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय सो मच, एरिया इज इंक्रीज बाय दिस मच, then length is decreased by this much, breadth is increased by this much, area is increased by this much, what is the length and breadth। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब आता है बच्चों, तो लेंथ इसमें फर्स्ट स्टेप होगा, लेंथ x होगा, ब्रेड्थ y होगा, तो एरिया होगा x इंटू वाई। नेक्स्ट अगर लेंथ को बढ़ा दिया या घटा दिया, x प्लस और माइनस मैंने लिखा है, y प्लस और माइनस लिखा है, तो एरिया भी क्या होगा, दिस प्लस और माइनस होगा। मान लीजिए अगर 5 है तो यहाँ प्लस और माइनस 5 होगा, यहाँ 6 है तो ये प्लस और माइनस 6 होगा, एरिया प्लस और माइनस से 10। तो जो भी उन्होंने दिया है उसके कंडीशन को आप सॉल्व करोगे, बाद में इसको इनटू करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा और वो कहलाएगा फर्स्ट इक्वेशन होगा। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अगर लेंथ को इतना कम कर दिया, मान लीजिए उन्होंने कहा कि 7 बढ़ा दिया और 8 घटा दिया, एरिया 15 से बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द एरिया। तो इसको गुणाकार करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो जाएगा आपका सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों मैंने फिर से आपको बता दूं मैं आपको कि लेंथ को जब एरिया का प्रॉब्लम आएगा, लेंथ होगा x, ब्रेड्थ होगा y, एरिया होगा xy, ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट उसके बाद क्या आता है, कंडीशन आता है। पहले तो इनिशियल कंडीशन में आप नॉर्मल ले लीजिए, यहाँ पर भी हमने नॉर्मल लिया, यहाँ पर भी हमने नॉर्मल लिया है।
बाद में वी आर गोइंग फॉर कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 में वो कहता है कि भाई इतना प्लस किया इतना माइनस किया एरिया इतना घटेगा, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन में होता है इतना माइनस किया इतना प्लस किया एरिया इतना होगा, तो वो सेकंड कंडीशन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो रहा है। तो बच्चों मैंने तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आई हैव टेकन ओनली 3 एग्जाम्पल्स। डोंट थिंक दैट दीज आर ओनली द 3 एग्जाम्पल्स दैट आर गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन। देयर मे बी वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स एंड यू हैव टू यूज this flow charts. You make a flow chart of all the examples and see that any problem can be solved through this flow chart. There are some problems which are very direct. For example, 7 bats and 2 balls, 6 bats and 3 balls cost this much. So they are direct problems. There directly you can solve the problem. या फिर हॉस्टल चार्जेस एंड फिक्स चार्जेस के ऊपर प्रॉब्लम है, देयर आल्सो यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट। फॉर एग्जांपल हॉस्टल चार्जेस फिक्स चार्जेस है, एक लड़का हॉस्टल में रहता है, रहने का इतना खर्चा है, खाने का इतना खर्चा है, 10 दिन अगर वो रहता है तो इतना पैसा देना पड़ता है। दूसरा लड़का इतना दिन रहता है, इतने दिन खाना खाता है, इतना पैसा देना पड़ता है। तो इसका भी फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप कहोगे फिक्स चार्ज x रुपीज़ कहोगे, हॉस्टल ये फिक्स चार्ज x रुपीज़ कहोगे, खाने का y कहोगे। तो नॉर्मली क्या करोगे आप, x प्लस वाई होगा फर्स्ट ये खाने का चार्ज, फिर इतना दिन बाद यानी 10 दिन अगर वो खाना खा रहा है तो x तो देगा ही देगा, 10 दिन खाने का देगा इज इक्वल टू दिस मच। फिर सेकंड कंडीशन में क्या होगा, दूसरा लड़का फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, 15 दिन वो खाना खा रहा है तो इतना। या लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है आपकी किताब में, तो लाइब्रेरी वाले किताब के अंदर लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, फिक्स्ड चार्ज इतना है, फाइन पर डे इतना है। तो वैसे आप हर प्रॉब्लम के अंदर इस तरह का फ्लो चार्ट आप बना सकते हो और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स कैन बी मेड इजी।